أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، سورہ نمل کی آیت نمبر 63، 64 اور 65 اور 66 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلے ان آیتوں کا ہم ترجمہ سنتے ہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ یہ آیت نمبر 62 ہے۔ بھلا کون ہے کہ جب کوئی بے کس پکارتا ہے تو وہ اس کی فریاد کو سنتا ہے، مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین پر گزشتہ لوگوں کی جگہ آباد کرتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ مگر تم بہت کم دھیان دیتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ وہ لوگ جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض أإله مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کون مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون۔ آپ کہہ دیجئے آسمان و زمین میں جتنی چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور ان کو خبر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ ان کو اس کے بارے میں شک ہے، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ 5-6 آیتوں کی میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہم نے سنا۔ گزشتہ کل ہماری بات یہ چل رہی تھی آیت نمبر 62 کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ پریشان حال کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا سنتے ہیں اور اس کی مصلحت کے لحاظ سے قبول بھی فرماتے ہیں،
اور مومنوں کے ساتھ ساتھ کافروں کی دعا بھی بہت سی مرتبہ مقبول ہو جاتی ہے، بلکہ دعا قبول کرنے کے معاملے میں اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جس وقت شیطان نے اللہ رب العزت کا حکم توڑا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اس سے اللہ رب العزت سخت غضبناک ہوئے، اللہ تعالیٰ غصے میں تھے، اس وقت بھی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ مجھے مہلت دی جائے کہ میں اللہ کے نیک بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں اور بندوں کو امتحان میں ڈالوں۔ ایسی سخت ناراضگی کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے شیطان جیسے شیطان کی دعا بھی قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کی مہلت بھی دے دی۔ یہ اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ حکمت اور مصلحت کے پیش نظر کبھی اس کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت تو شیطان کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں، غیر مسلم کی بھی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن خاص طور پر جب انسان اضطرار اور بے کسی اور بے پناہی کی حالت میں ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، نیز اس کی دعا قبول کیے جانے میں اس کے لیے حکمت اور مصلحت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہیں۔ تو اس آدھی آیت میں اللہ رب العزت کی شان کریمی بیان کی گئی ہے کہ بے سہارا، مظلوموں، بے یار و مددگار، بے کس، ناتواں، کمزوروں کی دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آگے کی جو آدھی آیت ہے اس میں ایک اور اللہ رب العزت کی قدرت بیان کی گئی ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین پر اگلے لوگوں کی جگہ آباد کر دیتا ہے، یعنی اللہ تم کو وہاں آباد کر دیتے ہیں جہاں پہلے لوگ بستے تھے، اس طور پر کہ ایک قوم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ اسی لحاظ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین پر گزشتہ لوگوں کی جگہ آباد کرتے ہیں، یعنی ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو اللہ رب العزت پیدا فرماتے ہیں۔ غور کیا جائے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک نسل دنیا سے جاتی ہے اور دوسری نسل پیدا ہوتی ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ دنیا میں زندہ ہی رہتے اور ان کو کبھی موت نہیں آتی تو دنیا کتنی تنگ ہو جاتی، اور یہاں بوڑھے، ضعیف، کمزور اور مجبور لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہو جاتی کہ ان کو سنبھالنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ آج اس دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی موتیں ہوتی ہے، کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر بھی ایک آواز بار بار لگائی جاتی ہے کہ اس ملک کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، لوگوں کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ کم پڑ جائے گی، 2050 میں اتنی آبادی ہو جائے گی، 2007 میں اتنی ہو جائے گی، زمین تنگ ہو جائے گی۔ لیکن ایسے لوگوں نے جو ایسے آوازیں بلند کرتے ہیں حقیقت میں اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کے نظام کو جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک بہترین نظام ہے کہ ایک قوم، ایک نسل دنیا میں آباد ہوتی ہے تو دوسری دنیا سے رخصت ہو جاتی، یعنی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کا سلسلہ چالو رہتا ہے تاکہ بیلنس رہے۔ اب یہ جو مر جاتے ہیں، موت واقع ہوتی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا پڑتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے اور ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اگر موت واقع نہ ہوتی اور جو بھی دنیا میں آیا یہی رہ جاتا تو اس دنیا میں بوڑھوں کی، بیماروں کی، کمزوروں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی اور ان کو سنبھالنا پھر مشکل ہو جاتا۔
इसलिए इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी हिकमतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त स्टेप बाय स्टेप एक नस्ल को इस दुनिया से उठा लेते हैं और दूसरी नस्ल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भेजते रहते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की बेहतरीन मिसाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का बेहतरीन नमूना है। खैर अल्लाह ताला फरमाते हैं वयजअलुकुम खुलफा अल अर्द, और अल्लाह की दात वो है जो तुमको जमीन पर अगले लोगों की जगह आबाद करता है। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और माबूद भी है जो ऐसा काम कर सके? क़लीलन मा तदक्करून, बात यह है कि तुम बहुत कम ध्यान देते हो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नाफरमानों से कह रहे हैं कि तुम लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तुम ऐसी बातों पर बहुत कम ध्यान देते हो। अगर तुम गौर व फिक्र करो तो तुम्हें हकीकत मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला कितनी बड़ी कुदरत का मालिक है। इसके बाद वाली आयत है आयत नंबर 63, अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर वमन युरसिलु रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिही अइलाहुम मअल्लाह तआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून। भला कौन है जो तुमको खुश्की और दरिया के अंधेरों में रास्ता दिखाता है, और कौन है जो बारान रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? वो लोग जिनको खुदा का शरीक ठहराते हैं, अल्लाह उससे बुलंदो बाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में भी दो बड़ी बड़ी निशानियां बयान फरमाई कि अल्लाह की दात वो है कि वो तुमको खुश्की में यानी जमीन पर और दरिया में यानी पानी में अंधेरों में रास्ता दिखाता है। बहुत सारे आदमी जो माहिर और तजर्बाकार होते हैं वो रोशनी के जरिए, सितारों के जरिए समंदरों में रास्ते मालूम कर लेते हैं रात के अंधेरों में। इसी तरह जंगलों में से रास्ते निकाल लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई कौन कर रहा है, तुम्हें रास्ते कौन दिखा रहा है? यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रास्ते दिखा रहे हैं। वमन युरसिलु रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिही, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बारिश के आने से पहले ये ठंडी ठंडी हवाएं कौन चलाता है? यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ठंडी हवाएं चलाते हैं, अल्लाह इसके मालिक हैं। जब बारिश होने को होती है उससे पहले ठंडी हवाएं चलाई जाती है, जिससे इंसान ये अंदाजा लगा लेता है कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत यानी बारिश आसमान से बरसेगी। और वो मखलूक जो गर्मी की वजह से, पानी न होने की वजह से परेशान हाल हो जाती है, इन ठंडी हवाओं के जरिए एकदम ताजगी महसूस करती है, इनकी तबीयतें मचलने लगती है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक कुदरत है, कुदरत की निशानी है कि अल्लाह ताला बारिश से पहले ऐसी ठंडी खुशगवार हवाएं चलाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इलाहुम मअल्लाह, कि अल्लाह के साथ दूसरा कोई पार्टनर है? तआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, अल्लाह जिन लोगों को ये लोग खुदा का पार्टनर बना रहे हैं उससे बहुत ज्यादा बुलंद व बाला है। यानी अल्लाह ताला तो ये सब काम करते हैं, और इसके मुकाबले में जिन लोगों के लोग शरीक और पार्टनर बना रहे हैं अल्लाह का, उनकी क्या हैसियत है? वो नीरे पत्थर ही तो है, मिट्टी ही तो है, न वो अपनी जगह से हरकत कर सकते हैं। बल्कि दूसरी एक जगह बयान फरमाया या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, ये लोगो, ये अल्लाह को न मानने वालों, एक मिसाल तुम्हारे लिए बयान की गई है, उसको ध्यान से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, कि जिन लोगों को जिन चीजों की, जिन मूर्तियों की, जिन माबूदों की, जिस आग की, जिन सितारों की, जिन समंदरों की, जिन हवाओं की, जिन पहाड़ों की तुम लोग पूजा करते हो अल्लाह को छोड़कर, उनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि एक मक्खी पैदा करके बतावे। वलौ इज्तमऊ लह, और किसी एक की बात नहीं, सब जमा होकर भी एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। और मक्खी को पैदा करना तो बहुत दूर की बात। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन यस्लुबहुमुद्दुबाबु शैअन ला यस्तनकिदुहु मिन, इन माबूदान बातिला पर
इन झूठे माबूदों पर जब तुम चढ़ावे चढ़ाते हो, उसके सामने मिठाइयां रखते हो और उसके ऊपर फिर मक्खी आकर बैठती है, मक्खी उस चढ़ावे को लेकर भागती है, उड़ जाती है। इन बेचारे कमजोर और नातवा और बेबस माबूदों में इतनी ताकत नहीं है कि अपने चढ़ावे की चीज लेकर जो मक्खी भाग रही है उस मक्खी को भी पकड़कर वापस ला सके। दऊफ तालिब वल मतलूब, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पूजने वाले भी कमजोर और जिसको माबूद बना रखा है, जिसको पूजते हैं, वो भी कमजोर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये सब चीजें मैंने पैदा की, हवाओं का भेजने वाला मैं, बारिश का बरसाने वाला मैं, खुशकी और तरी में अंधेरों में तुमको रास्ता दिखाने वाला मैं। जब इन सब चीजों में मेरा कोई पार्टनर नहीं है, ये सब चीजें मैं अकेला कर रहा हूं, तो फिर मेरी इबादत में दूसरों को पार्टनर क्यों बनाते हो? फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 64 में इरशाद फरमाया, अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द अइलाहुम मअल्लाह कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कौन मखलूक को पहली मर्तबा पैदा करता है, फिर उसको दोबारा पैदा करेगा? यानी पहली मर्तबा भी इंसान को अल्लाह ही ने पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसने बनाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। दूसरी मर्तबा यानी मर जाने के बाद दोबारा जिंदा कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जिंदा करेंगे। ये मुशरिकीन मक्का जो थे, अल्लाह को न मानने वाले जो थे, और आज भी जिन लोगों का आखिरत पर यकीन नहीं है, उनसे भी अगर पूछा जाए कि पहली मर्तबा इंसान को पैदा किसने किया, तो वो भी यही जवाब देंगे, ऊपर वाले ने। तो इतनी बात तो वो भी मानते हैं, लेकिन बाद वाली जो बात है सुम्मा युईदुहु, मौत के बाद दोबारा जिंदा करेगा, वो भी अल्लाह ही की जात है, इस पर इनका यकीन नहीं। अजीब बात है कि पहली मर्तबा ऊपर वाले ने पैदा किया, ये यकीन तो है, इसको तो मानते हैं। दोबारा वही पैदा करेगा, इस बात को नहीं मानते हैं। आगे वो बात आ रही है बतौर दलील के, वो कहते हैं कि जब हम मर गए, जला दिए गए, हमारी हड्डियां राख बन गई, समंदर में बहा दी गई, या हमको दफन कर दिया गया, हमारी हड्डियां मिट्टी बन गई, जमीन के साथ मिल गई, अब भला इसको दोबारा कौन पैदा करेगा? वो बात आगे आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला के लिए पहली बार पैदा करना भी आसान है, दूसरी बार पैदा करना भी आसान है। अल्लाह की दात तो वो है कि उसने पहली मर्तबा इंसान को बगैर किसी नमूने के, बगैर किसी सैंपल के, बगैर किसी मटेरियल के पैदा कर दिया। जब एक मर्तबा पैदा हो चुका, उसका ढांचा, उसकी तस्वीर सब दुनिया में आ गया, अब उसको देखकर तो दूसरी बार नकल करना बहुत आसान। आज चाइना वाले हर चीज की नकल कर रहे हैं, एक चीज को देखकर फौरन उसकी बना लेते हैं दूसरी, हत्ता के चावल भी बना देते हैं डुप्लीकेट, टमाटर भी डुप्लीकेट बना देते हैं। एक बार देख लिया, फिर दूसरी मर्तबा बनाना बहुत आसान। अल्लाह ने तो पहले बगैर सैंपल के, बगैर नमूना देखे पैदा किया। जो अल्लाह बगैर नमूना देखे पहली मर्तबा पैदा कर सकता है, बगैर सैंपल देखे बना सकता है, क्या वो अल्लाह दूसरी बार पैदा नहीं कर सकता? यकीनन अल्लाह के लिए पहली मर्तबा पैदा करना भी आसान है, दूसरी मर्तबा पैदा करना भी आसान है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, भला कौन है जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है, सुम्मा युईदुहु, फिर उसको दोबारा पैदा करेगा। वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, और कौन है जो तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता है? रोजे का मालिक अल्लाह है। आसमान से बारिश बरसती है, जमीन अपना गल्ला उगाती है, लोगों के पेट में अनाज और गल्ला जा रहा है, वक्त पर रोटी और चावल और सब खाने की चीजें मिल रही है, और दूसरी जितने भी चीजें हैं रोजी की लाइन से, तमाम के असबाब को अल्लाह पैदा कर रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ कर रहा है। एक छोटी सी मिसाल समझिए अल्लाह ताला की कुदरत की। ये बाजार में आप जाएंगे, अलग अलग किस्म के ताजिर अलग अलग चीजें बेचते हुए आपको नजर आएंगे। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अनाज गल्ला बेच रहा है, कोई टमाटर बेच रहा है, कोई मसाले बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। क्या मैं आपसे पूछता हूं, कभी ऐसा हुआ कि जिस वक्त पहले दिन जब बाजार खोली जा रही थी, बाजार बनाई जा रही थी, दुकानें बनाई जा रही थी, उस वक्त सब लोगों ने मिलकर मशवरा किया था कि भाई तू सब्जी बेचेगा, तू मसाले बेचेगा, तू गोश्त बेचेगा, तू
تو कपड़े बेचेगा, तो चप्पल बेचेगा, ऐसा किसी ने तय किया था? सबकी जिम्मेदारी? बिल्कुल नहीं। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों के दिलों में बात डाल दी। एक ताजिर के दिल में बात डाल दी, मिसाल के तौर पर कि भाई अभी रमजान है, ईद का मौका आएगा। आमतौर पर मुसलमान नए चप्पल खरीदते हैं, लेकिन इस साल तो इंशाल्लाह हम नहीं खरीदेंगे, लॉकडाउन का जमाना है, हम नहीं खरीदेंगे, पुराने चप्पल से ईद करेंगे। फिर एक मिसाल के तौर पर एक आदमी के दिल में अल्लाह ताला ने बात डाल दी कि अब ईद का मौका आएगा, अब लोग नई चप्पल खरीदेंगे, चलो दुकान खोलो चप्पल की। भी आदमी चप्पल की दुकान लेकर बैठ गया। इसके दिल और दिमाग में ये ख्याल डालने वाला कौन? अल्लाह। भाई चावल की जरूरत लोगों को पेश आएगी, तो एक आदमी गल्ले की दुकान खोलकर बैठ गया। इसके दिमाग में ये आइडिया डालने वाला कौन? अल्लाह। तो ये सब जो सिस्टम चल रहा है, सब असबाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाए हैं। सबके ख्यालात, सबकी जरूरतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दूसरे को सुझाई और समझाई है, जिसके मातहत लोग अपने अपने हिसाब से लोगों की जरूरतों को सामने रखकर रोजी कमाने के तरीके इख्तियार कर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को रोजी दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन है जो तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता है? अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ए मुशरिकीन मक्का, ए अल्लाह को ना मानने वालों, ए कयामत को जुतलाने वालों, अगर तुम ये कहते हो कि हाँ है, तो फिर उस पर कोई दलील लाओ, अपनी दलील पेश करो कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद भी है जो ये सब काम कर सकता है। अल्लाह ने तो अपनी दलीलें पेश कर दी कि अल्लाह ने आसमान बनाए, जमीन बनाए, आसमान से बारिश बरसाई, दरख्त लगाए, फल लगाए, इंसान को पैदा किया, दोबारा पैदा करेगा, मजलूम की दुआ को कबूल करता है, अंधेरों में रास्ता दिखाता है। सब कुदरत जो थी, जो निशानियां थी, अल्लाह ने बयान कर दी। अगर तुम कहते हो कि अल्लाह के अलावा भी कोई ऐसी जात है जो ये सब काम कर सकती है और इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, पूजा की जाए, परस्तिश की जाए, तो हाथु बुरहानकुम, अपनी दलील इस पर पेश करो। सिर्फ एक माबूद को आपने बना लिया अपने हिसाब से, उसके सामने झुकते हो गए, तो ये उसके माबूद होने की दलील नहीं है। माबूद होने की दलील और निशाने हमारे सामने पेश करो, कोई नहीं ला सकता। बल्कि दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अकेला हूं, अगर मेरे साथ कोई और माबूद भी होता, यानी अल्लाह के अलावा कोई और ताकत भी अल्लाह की तरह होती, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो जमीन और आसमान का निजाम दरहम बरहम हो जाता, तहस नहस हो जाता। मिसाल के तौर पर दो खुदा होते, दो माबूद होते, दो अल्लाह होते। एक कहता कि चलो रमजान का महीना है, मैं बारिश बरसाऊं ताकि मुसलमानों के लिए आसानी हो, और दूसरा कहता कि नहीं, मैं उसको देखना चाहता हूं मुसलमानों को कि सब्र करते हैं कि नहीं करते, मैं गर्मी डालूंगा। फिर एक गर्मी का तकाजा, दूसरा बारिश का तकाजा, तो फिर जमीन और आसमान का निजाम तहस नहस हो जाता। एक छोटी सी मिसाल आप समझ लीजिए, एक बस है, बस गाड़ी है, उसमें एक स्टीयरिंग पर एक ही ड्राइवर बैठता है। अगर दो ड्राइवर एक साथ बैठ जावे चलाने के वास्ते, तो एक इधर को खींचेगा, एक इधर को खींचेगा, और पूरी बस और मुसाफिरों को लेकर रास्तों को छोड़कर खाई में जाकर गिरेगा, सबको हलाक कर देगा। जब एक मामूली बस एक से ज्यादा ड्राइवर एक साथ बैठ जाए तो नहीं चल सकती, तो इतना बड़ा जमीन और आसमान और उसके दरमियान जो कुछ चीजें हैं, तमाम चीजों का निजाम एक के अलावा कोई और माबूद साथ में होता तो पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें तौहीद का अकीदा अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मरते दम तक तौहीद के अकीदे पर हमें साबित कदमी नसीब फरमाए, इस्तिकामत नसीब फरमाए। आज के दर्स में इतना ही। आज के दर्स में हमने बहुत सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानियां देखी, अल्लाह ताला के एहसानात सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन निशानियों को सुनने के बाद हमारे ईमान में और ताजगी अता फरमाए, हमारे यकीन को और मजबूत फरमाए। बकिया दर्स इंशाअल्लाह ताला आइंदा कल सुनेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।